Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is Internet. Objectives of learning, to know about the Internet and its uses, to study about the terms of Internet, to understand its advantages and disadvantages. What is Internet? Internet is a worldwide network of computers which allows sharing of information. In this network, the computers are connected through cables or any other devices. The Internet connects millions of computers around the world. When two computers are connected over the Internet, they can send and receive all kinds of information. Thus, Internet is global network or a worldwide network. Today, Internet is the first choice to access information, send and receive mails, and transfer funds due to its fast speed, low cost, and ease of operation. It has become quite useful for all. तो आपका जो इंटरनेट होता है ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है जो आपको अक्रॉस द ग्लोब, आप किसी भी कॉर्नर पे हैं, आपको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखता है. अगर दो कंप्यूटर्स जिसमें आपका इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है तो उन दोनों कंप्यूटर से आप इंफॉर्मेशन सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, या किसी और चीज़ के बारे में जानकारी भी आपको मिल सकती है. जो इंटरनेट होता है वो फर्स्ट चॉइस होता है तो इंफॉर्मेशन का एक्सेस लेने का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आपको इंफॉर्मेशन देती है. तो इसकी हाई स्पीड की वजह से इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. यूजेस ऑफ इंटरनेट. The internet has many uses and it has touched the lives of almost everyone. The different uses of internet are: number one, an electronic mail. Email enables us to send and receive messages to, from people from anywhere. Second, we can search for anything on the internet. Number three, the internet is a handy platform to upload, download and share data. Number four, the internet also provides a good source of entertainment. Number five, with the internet we can connect with people all over the world. Six, the internet is also an excellent place to do business, for it helps you reach global users. Number seven, online banking was possible because of the internet. Number eight, online shopping has made our lives easier. 9, internet is the best tutor and a medium of spreading education. 10, it is a boon for the students to learn their academics in an interesting audio-visual medium. 11, from food to shopping, from banks to healthcare, everything is available online. तो आपका जो इंटरनेट होता है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत सारी लोकेशंस पे आपका यूज़ होता है, और ऑलमोस्ट हर एक इंसान ने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट किसी ना किसी चीज़ के लिए तो इंटरनेट का यूज़ किया ही है. इसके कितने सारे यूजेस होते हैं. आपके स्कूल्स में इंटरनेट का यूज़ होता है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन चाहिए तो इंटरनेट यूज़ होता है. आपका जो ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, उसमें आप जब सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं वो भी इंटरनेट की वजह से होता है. आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप एक कोने में बैठ के एक दुनिया के किसी और कोने में भी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ डेटा शेयर करना है, डाउनलोड करना है, अपलोड करना है तो वो भी आप इंटरनेट से करते हैं. शॉपिंग से लेकर हेल्थ केयर से लेकर बैंक, पढ़ाई, हर चीज में आपका इंटरनेट यूजफुल होता है. Do you know internet was developed by the Advanced Research Projects Agency ARPA of the US government in 1969 and was first known as ARPANET. तो आपका जो इंटरनेट है वो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डेवलप हुआ था बाय द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ARPA. इसीलिए इंटरनेट को उससे पहले ARPANET कहा जाता था. इंटरनेट टर्म्स. Following are some of the important terms related to Internet. World Wide Web, WWW. World Wide Web, WWW, is the largest information system on Internet. It contains millions of websites that provide information in the form of text, animations, pictures and videos. तो WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब,
ये सबसे बड़ा आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वीडियोस के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, एनिमेशन के फॉर्म में या फिर ऑडियो के फॉर्म में। Do you know Tim Berners-Lee is known as father of www. He also invented HTTP. तो Tim Berners-Lee है, इन्होंने ही www का इन्वेंशन किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ www बोला जाता है। इसके अलावा इन्होंने HTTP जो दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका भी इन्होंने ही इन्वेंशन किया था। Web page. A web page is a single page on a website which consists of text, images, audios, videos, links, animations, etc. A web page may be created using HTML, Hypertext Markup Language. तो आपका जो वेब पेज होता है वो किसी भी वेबसाइट पे जब आपको कोई इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक जो सिंगल पेज होता है वो आपका वेब पेज होता है। इसको आप और भी तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द HTML, Hypertext Markup Language. Activity. Following are the hints of alphabets from A to Z. Answer the given hints and frame the word so formed. Number 1. Letter just after H. Second, letter just before O. Third, letter in between S and R. Number 4, letter just after D. Number 5, letter just after Q. Number 6, letter just after M. Number 7, letter just before F. Number 8, letter just after S. Write the word so formed. तो आपको hints दिए गए हैं, उन hints को follow करते हुए आपको हर एक सर्कल में उस लेटर को लिख देना है और आखिरी में जो वर्ड पूरा का पूरा फॉर्म हो रहा है आपको वो लिखना है। Website. Website is collection of related web pages. You can move from one web page to another web page in a website using hyperlinks. फिर आपकी वेबसाइट्स होती हैं, अगर आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना है तो हाइपरलिंक्स की मदद से आप उस चेंज को या फिर वेब पेज को स्विच कर सकते हैं, दूसरे वेब पेज पे आप जा सकते हैं। Home page. First web page displayed on opening a website is known as home page of the website. In general, it provides an idea about the contents of website. For this, it provides links to heading of major contents in the website. तो कोई भी आप जब वेबसाइट ओपन करते हैं उसका जो फर्स्ट पेज होता है जो यूजुअली आपको वेबसाइट के कंटेंट्स बताता है कि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं वो आपका होम पेज होता है। वेब ब्राउजर्स. Browser or web browser is software to view and explore information on the web. Some commonly used web browsers are Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla and Opera. तो आपका जो वेब ब्राउजर्स होते हैं या ब्राउजर्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं इंटरनेट की मदद से किसी भी वेब पेज को ओपन करने के लिए, वेबसाइट पे जाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसका इन्फॉर्मेशन या उसको आपको एक्सेस देने के लिए। कुछ आपके अलग अलग वेब ब्राउजर्स होते हैं जैसे कि क्रोमा, ओपेरा, मोजिला, ये सारे आपके वेब पेज ब्राउजर्स होते हैं। Do you know Microsoft Edge is the default web browser of Windows 10? तो Windows 10 अगर आपके लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स में इंस्टॉल्ड है तो उसका बाय डिफॉल्ट एक वेब ब्राउजर होता है जो है Microsoft Edge, वो आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा। Uniform Resource Locator, URL. Each web page on the internet has a unique address so that it can be referred uniquely. This unique address of a web page is known as its URL. तो URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जब भी आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं या वेबसाइट ओपन करते हैं उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। इस एड्रेस से डायरेक्टली भी आप उसी वेब पेज पर जा सकते हैं, इसको बोला जाता है URL। Internet Service Provider, ISP. ISP is generally some telecom company that provides connectivity. Some common internet service providers in India are Airtel, BSNL, V, Jio, etc. तो आपका ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपकी यूजुअली टेलीकॉम कंपनीज होती हैं जो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी देती हैं। इंडिया में कुछ आपकी ऐसी ही कंपनीज हैं जो आपको टेलीकॉम सर्विसेज देती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आपका एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये सारी आपकी टेलीकॉम कंपनीज हैं। Search engine. Search engine is a tool that helps user to search URL of a website. User simply gives some keywords related to contents of website and search engines display names of all websites
related to those keywords. Some commonly used search engines are Google, Bing, Ask and Yahoo. तो आपके सर्च इंजन्स होते हैं, ये आपको किसी भी वेबसाइट पे अगर जाना होता है तो आप कुछ कीवर्ड्स टाइप करते हैं. जैसे ही आप कीवर्ड्स टाइप करना स्टार्ट करते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं वो आपको सर्च इंजन्स पे दिखना स्टार्ट हो जाती हैं और आप आइडियली उनको चूज कर सकते हैं. कुछ आपके सर्च इंजन्स के एग्जाम्पल हैं गूगल, याहू, ये सारे आपके सर्च इंजन्स होते हैं. Critical thinking. Students, you all must be having a computer or a laptop at home. Write down which search engine do you see the most to search on the internet. तो आप सभी के घर में कंप्यूटर या लैपटॉप जरूर होगा. आप उसको ओपन करिए और उसमें देखकर बताइए कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप्स में कौन सा सर्च इंजन है और उसके क्या क्या यूजेस है. यहाँ पे आपको वो सब लिख देना है. Advantages of internet. Following are the advantages of internet. Number 1, internet is like a large library containing information about almost everything. Second, one can access internet from anywhere in the world at any time. Number 3, it is not biased to any person, company or country, so anybody can access it. Number 4, it has created a lot of new jobs such as web designer, web developer, web administrator. Number 5, it provides faster access to new techniques and avoids any uncertainty about any information. Number 6, it provides a range of entertainment media like music, movies, games for all the persons of all ages. Number 7, using internet's online shopping, customer can directly purchase product from company at a better price. तो इंटरनेट के आपके बहुत सारे यूजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपकी इंटरनेट पे अवेलेबल होती है. कहीं पर भी आप किसी भी कोने पर बैठे हैं, आपको दूसरे कोने के बारे में बड़ी आसानी से किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है. फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में बैठे हैं, आपको अगर यूएस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको इंटरनेट पे मिल सकती है. इसके अलावा आपको कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियो देखना है, म्यूजिक सुनना है, ऑडियो देखना है, इन सब चीजों के लिए भी इंटरनेट आपको काम आता है. इंटरनेट बायस्ड नहीं है, भेदभाव नहीं करता है, तो आप किसी भी कंट्री के आप नागरिक हो सकते हैं. आप इंटरनेट पे किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर सकते हैं. इसके अलावा शॉपिंग, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप घर पे बैठे हुए ही डायरेक्टली कंपनी के साइट पर जाकर आप शॉपिंग कर सकते हैं और आपको शॉप्स की कंपैरिजन में यहाँ पे सस्ती प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं. Disadvantages of internet. Some of the disadvantages of internet are as follows. Number 1, internet does not provide sufficient security. There is always a danger from hackers and crackers. Second, due to much garbage and improper way of accessing, it has become a quite time-consuming task. तो आपका जो इंटरनेट होता है वो आपको किसी चीज़ से बचा नहीं सकता, इसीलिए जो हैकर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी साइबर क्राइम कर सकते हैं. दूसरा, ये जो होता है क्योंकि इसमें कोई आपका टाइम लिमिट नहीं होता है, कोई आपको देख नहीं रहा है, नज़र नहीं है, कोई आपका पैटर्न नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है. Let's revise. Internet is the largest network that connects millions of computers across the world. Internet is used for emailing, searching information, shopping, chatting, advertisement, listening to music, watching movies, playing games, and social networking. Web browser is a program that is used to open the web pages or website. Every website has its unique address called URL. तो इंटरनेट जो होता है ये बहुत ही बड़ा एक नेटवर्किंग साइट होता है. नेटवर्किंग आपका एक ये प्रोग्राम होता है जो मिलियंस ऑफ पीपल को अक्रॉस द वर्ल्ड कनेक्ट करके रखता है. इसके अलावा इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी कॉर्नर में बैठ के मिल सकती है. www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आपने पढ़ा, जो कि वाइडली कॉमनली यूज्ड आपका एक सॉफ्टवेयर है. इसके अलावा आपने URL के बारे में पढ़ा, यूनिक लोकेटर, इसके बारे में भी आपने जाना. तो ये सारी चीजें आपकी एक इंटरनेट का ही कंपोनेंट्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आपको खुद से करनी है.